Hi guys, welcome to my YouTube channel Strish and Scrubs. I'm Srishti and I'm a nurse by profession. So today's video is going to be about a series of question and answers that you guys asked me on my Instagram page. So in this video, I'm going to try to answer to these questions which you guys asked and which are mostly regarding nursing. And I don't know what else. So because there were a lot of questions, I did try to answer them, in stories and all, but there were a lot of them, and I obviously cannot type and write that much. So I thought maybe why not a YouTube video क्योंकि मेरा YouTube channel तो dead पड़ा इतने time से because I am trying guys but I'm not able to put up content on my YouTube channel. So maybe this was the sign to finally make a YouTube video, right? So let's just start. So I have that question and answer on my iPad. So what we are going to do is कि मैं एक एक करके ये questions पढ़ूंगी and I'll try to answer कि क्या है. I do not remember what the questions were, so this video is going to be completely random and I will try कि I will give you the right information mostly. So let's just start from the beginning. बहुत सारे फालतू क्वेश्चंस भी आए थे, so I'm just gonna ignore, smile and just ignore them. So yeah, the first relevant question is, should we go for AIMS or foreign services? I think from foreign services I gather कि abroad जाने की बात हो रही है, and this question is asked by AKN. Should I say the names? I don't think so because then I will pronounce them wrong. So leave it. So the question is, should we go to AIMS or to foreign service? So AIMS or foreign service, it is really individual. क्योंकि whether to stay in India, have a job in AIMS or in central government or state government, PGI, ये बहुत एक इंडिविजुअल चॉइस है कि आपको अब्रॉड जाना है, आपको इंडिया में रहना है, बिकॉज एवरी वन हैज़ डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड्स, डिफरेंट रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स एंड स्टफ एंड डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हु आर आउट देयर एंड बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे, इंक्लूडिंग मी. सो राइट, मोस्ट ऑफ देम आर कन्फ्यूज बिकॉज वी डू नॉट नो देर इज दिस अनसर्टिनिटी कि बाहर जाएंगे कैसा लगेगा, मन लगेगा या नहीं लगेगा. सो बेटर क्या है, अगर बात करें कि बेटर क्या है, बेटर इज यू, इट डिपेंड्स ऑन यू. If your family needs you here and you are responsible for so much at your home that you cannot leave your parents or your siblings or your family and just go abroad, because going abroad is again, you're leaving your home, your job here, and then you're going abroad, setting up there, and things will be difficult over there for a year or two, but then it will start getting easier. But then it's very individual. Most of my friends who are there, they mostly have family who is settled over here, who do not have any much problem with them going abroad and taking the risk and stuff. So yes, they can go. Plus there is more money and the quality of life is better. There is no pollution like here in Delhi, and there are many plus points too. And if you are the person who wanted to go abroad since long, कि आपको यही था कि यार नर्सिंग इसलिए करी थी, बाहर ही जाना था, तो आप जाओ. बट अगर आपको ये है कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जैसे मुझे हो रहा है कि यार सब जा रहा है, मैं नहीं जा पा रही, सब जा रहा है, मैं नहीं जा पा रही. सो जस्ट सिट, थिंक एंड जस्ट आस्क योर सेल्फ, इज दिस really you want to do? Whether you really want to stay here in India, get a job near your house, settle here, earn, be with your friends and family and have a good life here, which you can have if you will get into a central government institute. But if you want to go out, if that's your dream, go for it, go abroad, it is also good. But go with the fact in your heart and your brain, just get it embedded inside कि you know how to live alone, because you will get lonely when you will go abroad. You will struggle with a lot of things. You will not have your parents at times. So yes, just go with the fact कि बहुत lonely होने वाला है. So just be prepared for it, but eventually with time it will get better, obviously, because everything gets better with time. So yes, if not, then you can always come back. But then if it is too risky, just too much risk, then just make up your mind. Take time, make up your mind, and then think. Talk to your parents, talk to your family and friends regarding the matter, and maybe they can guide you better than me, because obviously I don't know you.
So yes, the next question is, what's the difference between MSc nursing officer and non-MSc nursing officer? Nothing. No difference. I have done MSc nursing and I am a nursing officer. कोई डिफरेंस नहीं होता. MSc नर्सिंग की डिग्री आपको काम आएगी अगर आपको हायर डिग्री अलाउंस आपके इंस्टीट्यूट से मिल पा रहा है, या फिर अगर आपको कल को एकेडमिक साइड पर स्विच करना है एज अ ट्यूटर में तो बेसिक क्वालिफिकेशंस आपकी अभी मोस्टली BSc नर्सिंग में 3 years ऑफ एक्सपीरियंस आ रही है, बट ऑब्वियसली एन एकेडमिक डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन PhD विल हेल्प यू इन योर एकेडमिक करियर ऑब्वियसली. बट अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की बात कर रहे हैं तो उस पर कहीं मैटर नहीं करता है. उस पर बस जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपको पोस्ट BSc नर्सिंग या GNM विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर आपको सिर्फ BSc नर्सिंग का क्राइटेरिया है आपको एलिजिबल होने के लिए, तो आपको सिर्फ वही रखना है. और जैसे मेरे खुद के कलीग्स हैं कि जैसे आई एम MSc नर्सिंग, आई हैव डन MSc नर्सिंग, बट कोई GNM, किसी ने GNM भी करा हुआ है, किसी ने पोस्ट BSc भी करी हुई है, कोई सिर्फ BSc करके आए हुए हैं. सो इट डजेंट मैटर रियली. इट ओनली मैटर्स इफ यू गेट इनटू एकेडमिक्स एंड और इफ़ यू वांट टू गो इनटू एकेडमिक्स, सो टू एनहांस योर नॉलेज, कि आपको और डीप नॉलेज हो चीज़ों के बारे में, रिसर्च के बारे में, एंड सो देन यू डू MSc. बट इन द जॉब ऑफ प्रोफाइल ऑफ अ नर्सिंग ऑफिसर देर इज़ नो सच डिफरेंस. तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने MSc नर्सिंग करी और मैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ तो मेरा पोस्ट कुछ ज़्यादा बड़ा है उनका छोटा. ऐसा कुछ नहीं है, सबका सेम है, सबका सेम ही होता है, बिकॉज द एलिजिबिलिटी इज BSc ओनली और GNM विद एक्सपीरियंस, राइट. उसके बाद क्वेश्चन है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम थ्रू द नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ कोचिंग, ओके, बट आई एम सो अफ्रेड. ओके, दैट्स द क्वेश्चन. ठीक है, डोंट बी अफ्रेड डूड, यू आर getting coaching from a coaching institute, which I actually honestly speaking मुझे नहीं पता है नर्सिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में ज़्यादा, बिकॉज यू गाइज कीप आस्किंग मी कि अच्छा नर्सिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है. मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं ली, और जो चीज़ मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करी तो मैं आपको कैसे बता दूँ कि ये बेटर है ये नहीं है. सो ये आपको उन लोगों से पूछना पड़ेगा जो ऑलरेडी कोचिंग में थे, जिन्होंने वहाँ से पढ़ के नॉर्सेट क्रैक करा है. दे कैन गाइड यू बेटर देन मी. बट इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग सो मच कि आपको पता नहीं चल रहा कैसे प्रैक्टिस करनी, यू नीड अ गाइड, you need a path, you need mentors to guide you for the exam preparation, definitely then you should go for a coaching, a good coaching, और उसके accordingly आप prepare करो. just trust the teachers एंड खुद से भी आप सेल्फ अवेयर ही रहो, क्योंकि आप बुक्स पढ़ो, खुद से पढ़ो, आपके खुद के जो डाउट्स है, बस ये डिपेंड मत करो कि यार सामने वाला पढ़ाएगा तो ही हम पढ़ रहे हैं, वही एग्जाम में आ जाएगा. ट्रस्ट देम, बट ट्रस्ट योर सेल्फ टू. Be aware, keep studying your books, keep having doubts and clear them with your faculties and your seniors. And don't be afraid. If you will study good, practice good MCQs and have confidence in yourself, definitely you will get through, क्योंकि बहुत ज़्यादा difficult exam नहीं है. ऐसा नहीं है कि कोई impossible चीज़ नहीं है, हो जाएगी चीज़, मेहनत लगती है हर चीज़ में, बट हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ोगे वो आएगा ही नहीं. आप जो पढ़ोगे उसी के अराउंड उसी में से चीज़ें आएंगी, तो आपको उसी तरीके से पढ़नी है कि सामने कोई क्वेश्चन आ जाए सो यू कैन आंसर इट, राइट. और अगर आप कोचिंग करो तो और भी अच्छा है. कोचिंग टीचर्स तो ट्रेंड होते हैं पढ़ाने में इन चीज़ों में, दैट हाउ टू एक्चुअली क्रैक एग्जाम्स, राइट. देन व्हाट इज द प्रोसीजर आफ्टर क्लियरिंग NCLEX एग्जाम? I have not given NCLEX exam. So NCLEX is for NCLEX USA, NCLEX Canada, NCLEX Australia भी हो गए. So NCLEX is an exam which you give to have a license in America, Canada or Australia to be practicing as a registered nurse. Then only you can practice over there after clearing this exam. बहुत बड़ा प्रोसेस होता है और हर जगह का अलग अलग होता है. आफ्टर क्लियरिंग NCLEX, पहले तो NCLEX देने के लिए ही आपको एलिजिबल होना पड़ता है. बिफोर दैट यू हैव टू टेक get certification done from the certification authorities of different states, whether it's in US, Canada में है तो आपकी प्रोविंस कौन सी होती है, and it's different, and I have not done this process, but there are YouTube videos. So you can Google it on YouTube, and there are some videos जिन्होंने बहुत clearly steps बता रखे हैं कैनेडा और USA के लिए कि अगर आपको देना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा. सो जस्ट यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है रिगार्डिंग द NCLEX एग्जाम, एंड आई होप. उसके बाद आपकी ब्यूटी के क्या
मेरी ब्यूटी के क्या राज क्या है? आई हैव सो मेनी पिंपल्स ऑन माई फेस राइट नाउ, जस्ट लुक. कोई राज नहीं है मेरी ब्यूटी का. आई एम स्ट्रेस्ड गाइस, एंड आई एम जस्ट स्ट्रेस्ड, एंड आई एम स्ट्रेसिंग, एंड आई एम जस्ट गेटिंग पिंपल्स ऑन माई फेस. एंड मेरी ब्यूटी की कोई राज नहीं है गाइस. डोंट गेट इंस्पायर्ड. Then why you opted to become nurse and not a doctor? Because I never prepared for being a doctor. What happened कि 12th तक I never took any coaching. मैंने अपनी introductory videos में बताया है. उसके बाद +2 जब हो, मतलब जब 12th हो गई थी, तो उसके बाद my parents didn't want me to drop to prepare, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंजीनियरिंग, BLEd टीचिंग कोर्सेज और एम्स नर्सिंग में आ गया था, सिलेक्शन हो गया था. तो दे रियली वांटेड मी टू चूज द बेस्ट आउट ऑफ देम ओनली, एंड दे रियली डिडंट वांट मी टू वेस्ट अनदर ईयर. अनदर क्या, एक ही नहीं था, बट ऑब्वियसली सो आई डिडंट हैव एनी चॉइस टू टेक अ ड्रॉप ऑन एनीथिंग और टेक कोचिंग. So I chose whatever was available. So I chose AIMS BSc Nursing, and then I got to my college AIMS Jodhpur, and then the journey started, right? So I never really had a chance to become a doctor. Yeah. So what you did after GNM, like we can directly apply for NORCET. I am a postgraduate, guys. क्या कैसे सवाल कर रहे हो यार? मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है अब. सो बट अगर किसी ने GNM करी है तो उनको 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ मिनिमम ऑफ 50 बेडेड हॉस्पिटल एक्सपीरियंस उन्हें चाहिए. GNM करने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस एक मिनिमम ऑफ 50 बेडेड हॉस्पिटल में उनके पास होगा, तो फिर वो एलिजिबल हो जाएंगे नॉर्सेट एग्जाम देने के लिए. जस्ट आफ्टर GNM नहीं होंगे. At what age you graduated BSc and what age are you right now? Okay. So I got into my BSc in Honors Nursing program when I was 17, just after 12th. And in my, मतलब कॉलेज जाते ही I turned 18. And I got out 4 साल बाद, I think कितना हो गया, 21, 22. एंड देन जस्ट आफ्टर दैट मैंने MSc में एडमिशन कर लिया. तो बस 1 महीने का ही गैप था मेरे BSc और MSc में. और इन माई 22 एंड 23rd ईयर आई कम्प्लीटेड माई MSc. और जब मैं MSc लास्ट ईयर ख़त्म करके, माई बर्थडे इज ऑन 4th of September, राइट? So last year on 1st September I got back to Delhi, and then on 4th of September I celebrated my 24th birthday. So yes, at the age just before turning 24 I completed my BSc and my MSc, and now I am 25. I turned 25 last month on 4th of September, and it's been a year. अब मुझे 1 साल हो गया है काम भी करते हुए, because just after MSc I joined here as a nursing officer दिल्ली में. So now I have 1 year of experience as a nursing officer too. So yes, that's the answer. Next question is boys के लिए BSc nursing better है या BAMS? I have no idea, क्योंकि better है या नहीं depends on कि आपको life में, मतलब आपको क्या करना था. मुझे कभी भी नर्सिंग करने का कोई रिग्रेट नहीं है, जैसे लोगों ने क्वेश्चंस में पूछा हुआ है आगे भी, क्योंकि मैंने ये खुद चूज करा है. बट इफ़ यू रियली वांट टू बिकम अ डॉक्टर, और कैसा भी हो, चाहे वो होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, MBBS, जस्ट इट इज़ अपॉन यू. नर्सिंग इज़ नॉट बैड, but it can turn out really bad for you if you always wanted to become a doctor and you're just doing it for the sake of just doing it and then just hating it all the way through. Because I have seen many people in my class and around me which have changed career paths and they're still confused what to do in their life. So just think very deeply about this and then take any next step. Then is there any OSCE exam after theory exam? So in NORCET, no, there is no OSCE or any kind of skill exams. You just have to clear the NORCET exam. But कुछ एम्स में पहले, जैसे एम्स ऋषिकेश, पटना वगैरह में पहले कुछ वैकेंसीज आई थी, जिसके बाद आफ्टर क्लियरिंग द रिटन एग्जाम यू हैड टू गिव द स्किल्स एग्जाम, और उस स्किल्स एग्जाम में भी आपको क्लियर करना था एग्जाम को. सो येस, बट अभी नॉर्सेट में नहीं है. देन आफ्टर BSc नर्सिंग विच एग्जाम वी विल बी एबल टू गिव? आफ्टर BSc नर्सिंग you get your registration with the State Nursing Council and INC. एंड उसके बाद जब आपका RN/RM नंबर आ जाएगा, देन यू विल बी एलिजिबल टू फिल एवरी पोस्ट फॉर अ स्टाफ नर्स / नर्सिंग ऑफिसर, जैसे कि एम्स, CGHS के हमारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो, PGI, जिपमर,
निमहांस। एंड स्टेट की आपकी जो भी वैकेंसीज आती है जैसे राजस्थान, यूपी और बाकी शायद जहाँ पे भी आती होंगी, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। DSSB, यस, दिल्ली के लिए जो होता है, तो आप वो सब भर सकते हैं जब जब भी आएगा। तो आपको लेकिन रखना है कि कब एग्जाम्स आ रहे हैं। क्या आपके टूथ में इसमें नमक है? भाई यार क्या है ये, कैसे क्वेश्चंस है? ठीक है। उसके बाद आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में ही रहती हूँ, यहीं पे नौकरी करती हूँ, अपने घर पे रहती हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what all equipments you use to shoot videos? Currently I just have my phone. I have an iPhone 13 and I have this string light which have this tripod. तो मैंने अपना phone इसमें fit करा हुआ है and I'm just reading the questions from my iPad and that's it. I am no YouTuber big wala and I am a very technically dumb person most of the times. So it's just my phone, right? And the light. Yeah, then the next questions. NORCET is only for AIMS? No, it is mostly for AIMS but not just for AIMS. NORCET में NORCET के साथ AIMS तो सारे होते ही होते हैं, बट NORCET अपने साथ में 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी कर लेता है कवर। जैसे अभी इस साल या प्रीवियस ईयर्स में उसने करा है, जैसे कि सफदरजंग हॉस्पिटल, RML, लेडी हार्डिंग, कलावती, राइट। बट ये कुछ जैसे सफदरजंग की सीटें डिसॉल्व हो गई थी, तो ये डिपेंड करता है। बट एम्स सारे आते ही आते हैं, सारे तो नहीं, मतलब जिसमें वैकेंसी आते हैं। विद एवरी NORCET यू हैव दिस सीट allotment of different AIMS institutes, and plus there can be other central maybe central hospitals included too, but and it is always given in the seat allocation process. जो भी seat allocation is different, but seats available in different institutes, जो list आती है उसमें आपको मिल जाएगा। देन आपने BSc नर्सिंग एंड MSc नर्सिंग कहाँ से किया? मैंने अपना BSc नर्सिंग एंड MSc नर्सिंग दोनों डिग्रीज एम्स जोधपुर से करी। फॉर MSc नर्सिंग एक्सपीरियंस इज नीडेड और नॉट? MSc नर्सिंग अगर आप लोग एम्स से कर रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मेरे को नहीं चाहिए था, मैंने जस्ट आफ्टर BSc अपना MSc करा। बट अगर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे कि SMS जयपुर है, PGI है, और अगर आप डिफरेंट स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स के लिए निकालोगे तो मोस्टली जगह पे आपको 6 मंथ्स, 1 ईयर, 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बट एम्स की गाइडलाइंस में आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि आप MSc नर्सिंग के लिए कहाँ का फॉर्म फिलअप कर रहे हो। तो जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको वहाँ पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिख जाएगा उनको क्या क्या चाहिए, कि कितना एक्सपीरियंस उनको चाहिए या नहीं। तो हमने जब फॉर्म भरा था BSc नर्सिंग में, फाइनल सेमेस्टर में एग्जाम दिया था, तो हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था। फाइनल सेमेस्टर में ही हमने एग्जाम दे दिया था, उसका रिजल्ट भी आ गया था, एंड फाइनल ईयर के एग्जाम्स खत्म होने से पहले ही हमें पता था कि दैट वी काइंड ऑफ गॉट आवर रैंक्स, एंड देन आफ्टर द काउंसलिंग प्रोसेस आई गॉट द इंस्टीट्यूट इन जोधपुर। देन व्हाट इज द सिलेबस फॉर NORCET एग्जाम? NORCET एग्जाम का सिलेबस है द होल 4 ईयर सिलेबस इन योर BSc नर्सिंग। आपके सारे सब्जेक्ट्स जो भी आपने अपनी नर्सिंग कोर्स में पढ़ा है वो पूरा है NORCET एग्जाम के लिए कोर्स, प्लस आपका जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, जिनके लिए आप यूट्यूब वीडियोस रेफर कर सकते हो। जैसे जब मैंने एग्जाम दिया था तब प्री और मेंस नहीं था, बट अब प्री और मेंस होने लग गए, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपके जीके और एप्टीट्यूड के हमेशा रहेंगे। तो आप उन क्वेश्चंस को, जीके के क्वेश्चंस जैसे हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा एंड ऑफ फ्रांस, और लंदन और इंडिया में कितना टाइम डिफरेंस है, एंड हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर। सो दीज आर द क्वेश्चंस, काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड, और कुछ एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप प्रिपेयर करें और थोड़े करंट अफेयर्स पढ़ के जाना एग्जाम से पहले, आपको पता होना चाहिए। देन एनी, यार फालतू के क्वेश्चंस कितने सारे हैं। शादी कब कर रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता भाई। आई एम सिंगल, so single. I don't have anyone to get married to. Then क्या questions है ये? Okay, why did you not join AIMS Rishikesh?
एम्स ऋषिकेश एक क्वेश्चन आया था क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर मैंने अपनी स्टोरी पे पुट अप करा था, किसी ने मेरे से पूछा था कि ये मेरे नॉर्सेट का फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है, मैंने कितने क्लियर करा एग्जाम। सो द आंसर वाज कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जो अपनी बीएससी नर्सिंग खत्म होते ही दिया था, वो अटेम्प्ट मैंने बस ऐसे ही दिया था फॉर प्रैक्टिस पर्पस, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि एक बार दे दो, एक्सपीरियंस हो जाता है। बट मैं ऑलरेडी एमएससी नर्सिंग में अपने आप को एनरोल करा चुकी थी एम्स जोधपुर में। बट आई गेव द एग्जाम एंड आई गॉट एम्स ऋषिकेश। बट मैंने वो ज्वाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे एमएससी नर्सिंग करनी थी, और मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक कराया एंड आई रोट देम दैट आई नीड एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर आफ्टर द ज्वाइनिंग, जब उनकी ज्वाइनिंग आ गई डीवी के बाद, बट इट गॉट डिनाइड। सो देन आई लॉस्ट द सीट एट एम्स ऋषिकेश बिकॉज आई डिड नॉट ज्वाइन। उन्होंने जो ज्वाइनिंग डेट दी थी मैंने फिर ज्वाइन नहीं करा। देन इन माई सेकेंड ईयर ऑफ एमएससी नर्सिंग फिर से नॉर्सेट का एग्जाम आया, और नॉर्सेट का एग्जाम उस साल नवंबर में हुआ था, आई थिंक इट वॉज 20 नवंबर। एग्जाम मैंने दिया एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट एग्जाम। तो जो अभी मैं जिस जॉब पे हूँ वो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट से है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट वाला मैंने एम्स ऋषिकेश ज्वाइन नहीं करा था, और ज्वाइन ना करने का रीज़न था क्योंकि मुझे एमएससी नर्सिंग कंप्लीट करनी थी और मुझे एक्सटेंशन नहीं मिल रहा था। देन हाउ मेनी ईयर्स एक्सपीरियंस शुड वी हैव टू बी ओके, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपको बीएससी नॉर्सेट के एग्जाम के लिए अपीयर होना है, आई थिंक यही क्वेश्चन है। आपको नहीं चाहिए एक्सपीरियंस नॉर्सेट के एग्जाम के लिए अगर आपने बीएससी नर्सिंग करा हुआ है, यू हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री। बट अगर आपने जीएनएम करा हुआ है अगेन, तो यू नीड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ 50 bedded हॉस्पिटल। देन आपका क्या ख्याल है पीएचडी नर्सिंग का? डेफिनेटली करनी चाहिए पीएचडी नर्सिंग, लेकिन उसके लिए बेटर है कि अगर हम फैकल्टी पोजीशंस पे हों, ट्यूटर वगैरह हों, तो ज़्यादा बेटर है उस टाइम पे पीएचडी रिसर्च कैरी आउट करने का। देन क्वेश्चंस, हाउ कैन आई अटेम्प्ट नॉर्सेट ड्यूरिंग 4th ईयर? 4th ईयर में आप नहीं दे सकते हो। आप नॉर्सेट का फॉर्म तभी फिल कर सकते हो जब आपके पास आपका RN नंबर हो। RN नंबर आपको तभी मिलेगा जब आपका ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा और आपके पास आपका 4th ईयर तक का रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास 4 साल की मार्कशीट होगी, और जब आपके पास आपका प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट मिल चुका होगा आपके कॉलेज के, उसके बाद आप पूरा अपना स्टेट नर्सिंग, जहाँ से भी आपने नर्सिंग करी है, SNC का आप पूरा फॉर्मेट के साथ वहाँ के स्टेट नर्सिंग में अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी फॉर्म सबमिट होता है फिल करके, जब आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन काउंसिल से सर्टिफिकेट नहीं आएगा तब तक नॉर्सेट का एग्जाम भर नहीं सकते, क्योंकि फॉर्म के अंदर आपको RM नंबर चाहिए होता है। व्हाट इज द प्रेजेंट सैलरी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जो ग्रेड पे है नर्सिंग ऑफिसर का, सो इट इज़ 4600 एंड इट इज़ अ ग्रेड 2 जॉब। 4600 आपका ग्रेड पे है और आपकी बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है 46,900 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड वो धीरे धीरे आपके साल में DA और आपका इंक्रीमेंट लगता है ईयरली, तो वो थोड़ा थोड़ा करके विद ईच ईयर बढ़ती है, बट आपके टैक्सेस भी बढ़ते जाते हैं। पर अगर मैं आपको ग्रोस बताऊँ कि आप कितना अर्न कर सकते हो अगर आप एम्स या सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जैसे दिल्ली के चारों हॉस्पिटल्स हो गए, आपका जिपमर, निम्हांस वगैरह ये सब हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं आपके, तो आप अर्न कर सकते हैं, आपकी सैलरी वेरी कर सकते हैं 70,000 to 80,000 और मे बी 65,000 to 80,000 के बीच में, क्योंकि हर सिटी का अपना अपना अलग हाउस रेंट, HRA अलाउंस जो होता है, हाउस रेंट डिफरेंट होता है। और जैसे एम्स गुवाहाटी है तो पर वहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट अलाउंस मिलता है 4500 रुपीज़ का आई थिंक, तो इसलिए उनका वो कंपनसेट हो जाता है HRA से। तो थोड़ा थोड़ा जो आपका वेरी करता है वो आपका HRA से वेरी करता है XYZ सिटी के अकॉर्डिंग। पर अगर आप दिल्ली में जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी 70 to 80,000, 75,000, 8,000 के अराउंड वेरी करेगी पर मंथ। ये आपकी आफ्टर टैक्स डिडक्शंस हैं, और अगर आप NPS कटवा रहे हो तो उसके बाद है। ग्रॉस सैलरी से ज़्यादा होती है, पर ग्रॉस से वो हटाओ क्योंकि एंड में आपके अकाउंट में जितना आ रहा है आप उतना देखो, तो इट इज़ इन 70s। देन व्हाट इज़ द ड्रेस कोड क्राइटेरिया इन एम्स? एक बेसिक यूनिफॉर्म नर्सिस की होती ही है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल नर्सिस। एम्स में ब्लू कलर का है आई थिंक, एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें बहुत बेकार सा कलर है,
लाइक लाइट ब्राउनिश और समथिंग लाइक दैट, वो कलर है। तो अगर आप वार्ड वगैरह में पोस्टेड हो, आप कैजुअल एरियाज में पोस्टेड हो, तो आपको वो ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है। लड़कियों के लिए जहाँ पे एक सूट और एक एप्रन होता है, और बॉयज़ के लिए वहाँ पे एक शर्ट पैंट्स एंड एप्रन होता है। बट अगर आप स्पेशलाइज्ड एरियाज में हो, जैसे ओटीज, आईसीयूज, डायलिसिस यूनिट्स, ट्रॉमा सेंटर्स, वहाँ पे आपको स्क्रब्स पहनने होते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंस्टीट्यूट। अगर आप एम्स में हो तो आप कौन से एम्स में हो, वहाँ के स्क्रब्स आपके पहनने पड़ते हैं। ये मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। अगर आप दूसरे एम्स में हैं, जैसे एम्स जोधपुर जहाँ से मैंने अपना कॉलेज करा है, तो वहाँ पे सबके लिए, नर्सेज के लिए ब्लू कलर के स्क्रब्स हैं। बट इफ़ यू आर इन एम्स नागपुर, आपके लैवेंडर कलर के स्क्रब्स हैं। आई थिंक रायबरेली में आपके मरून कलर के स्क्रब्स है, ऋषिकेश में भी मरून स्क्रब्स है। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन विच एम्स यूर वर्किंग। हर एम्स का अपना अपना कलर कोड है और उसके अकॉर्डिंग आपके स्क्रब्स है। अगर आप दिल्ली एम्स में हो तो आपको सूट और स्क्रब्स दोनों कुछ भी पहनने को मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया। देन should we go for Norset or Masters? Personally, I went for Masters because I hope at some point in my life I would switch to academics if I got the chance. और अगर आपको academics में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अगर आपको क्लिनिकल फील्ड में ही रहना है तो फिर आप नॉर्सेट दो पहले। बट अगर आपको टीचिंग साइड में इंटरेस्ट है, आप चाहते हो कि आप ट्यूटर और एपी वाली लाइन की तरफ जाना चाहते हो, तो आप पहले अपनी मास्टर्स करो, क्योंकि इन सर्विस एजुकेशन का पता नहीं है आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्योंकि पहले आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फुल, अगर आपको बेसिक सैलरी आपकी पूरी चाहिए। उसके बाद आप एग्ज़ाम दोगे, वो क्लियर होगा, फिर आपका इंस्टीट्यूट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इफ़ दे अलाउ यू, ओनली देन यू कैन गो एंड ज्वाइन एज अ फुल टाइम एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट। सो मेरे को बहुत डाउट्स थे रिगार्डिंग दैट वेदर आई कैन डू माई इन सर्विस एजुकेशन लेटर ऑन। तो इसलिए मैंने पहले ही, मुझे मौका मिला, आई क्लियर्ड द एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आफ्टर इन माई फाइनल सेमेस्टर ऑफ बीएससी, सो आई वेंट फॉर इट एंड आई डिड नॉट ज्वाइन the Norset Institute, AIIMS Rishikesh, and I went for MSc, and later on I got selected again. So yes, it depends on you. It is individual. Both choices are right. As I said, it is just different perspectives. Then 2-3 questions और करते हैं, वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी। Then मोस्टली मैंने आंसर कर दिया था, बहुत सारे सेम क्वेश्चन सब लोग पूछ रहे हैं। व्हाट टू डू आफ्टर बीएससी नर्सिंग? भाई बीएससी नर्सिंग खत्म करो, पेपर दो, नॉर्सेट, पीजीआई वगैरह, और नौकरी वोकरी पे काम धंधे पे लगो यार, पैसे कमाओ। उसके बाद क्वेश्चंस, विच डिपार्टमेंट? सो अभी मैं इमरजेंसी आईसीयू में काम कर रही हूँ। पहले मैंने 5 months यूरोलॉजी ओटी में काम किया है, बट देन आई गॉट ट्रांसफर टू इमरजेंसी आईसीयू, सो करेंटली आई एम आईसीयू नर्स। Then next questions, what is my plan after this? Guys, that is why I'm stressed, because I don't know. Honestly speaking, I thought that I might go to abroad after my BSc nursing and after a few months of experience. But then I started doing my MSc nursing, and then after MSc nursing I got the job, and it's been a year since I'm in clinicals, and I do not know whether I really want to go abroad or not, and I'm still sitting on the decision, right? And I am not able to make any. So I seriously do not know. But if I'll stay in India, I'll obviously try to go into academics for sure. And this is a very much topic I would like to discuss with myself. Ki what do I really want to do next? Right now, I want to post more videos on YouTube and Instagram, which I am not really putting up because I like making videos. I like talking because I talk a lot, but I'm not doing it oftenly, and I should. So, how was my life as a student nurse? Yeah, this is a good question. मेरी student nurse वाली life बहुत अच्छी थी, क्योंकि कॉलेज का इन्वायरमेंट में मतलब जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड थी, बी इट प्लेइंग स्पोर्ट्स, कल्चरल इवेंट्स एंड ऑल, क्लिनिकल स्टडीज़, एवरीथिंग वाज बैंग ऑन। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई गॉट टू स्टडी फ्रॉम सच अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, एंड अलॉन्ग विद दैट आई played sports with my friends, and I had a very nice campus life. And then I also did parts in cultural events like dances, fashion shows and all that, organizing
helping in organizing those. So it was a really great experience, and I really liked my student life. It went really well, and it taught me a lot. Taught me a lot, guys, honestly. So the last question I would like to answer is coffee. I will say yes, why not. कोई अच्छा सा क्वेश्चन मैं देख रही हूँ. Yeah. Okay. Also, can I do private post basic nursing while working at a district hospital legally talking? Is I do not know. I think you should take permission from your institute for that. क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस में होता है, जैसे इन सर्विस एजुकेशन है, इट इज़ योर हॉस्पिटल अलाउज यू टू डू दैट. So you should basically try to reach out the administration departments, and आप तभी कुछ ऐसा कोर्स में अपने आप को एनरोल करो जब आपका हॉस्पिटल, इफ़ यूर अ फुल टाइम एम्प्लॉय वर्किंग देयर अंडर देयर एम्प्लॉयमेंट, तो आप पहले अपने हॉस्पिटल से परमिशन लो, फिर ही कोई आगे करो चीज़ें. So guys, I think that I have answered a lot of questions, and I would like to do this oftenly on my Instagram page and then make a YouTube video, because I get to talk and I went, and I hope कि आपको कुछ थोड़े बहुत answers मिल जाते हो इन videos से. So without taking much of your time, I would like to sign off from this video, and I will be back soon, and yes, I will post more. And if you have any other questions, please write down them in the comment box, and then I will make another video and I will answer them. Then it will be a series of question and answers. You get my point? That this way I can be consistent, right? I can be consistent. I can do it. You can do it, Srishti. So yes, guys, thank you for watching the video. Please subscribe to my channel, Srishan Scrubs, and you also follow me on Instagram, Srishan Scrubs. Show some support, show some love, and please motivate me to post more, because I'm stupid. So yes, thank you for watching. Subscribe to my YouTube channel, like the video, comment your questions, whatever, and yes, share the video with your friends too. And thank you for watching. Bye, love you.